जरा आंखें बंद करिए और सोचिए, चारों तरफ बस आपको नीला समंदर दिखाई दे रहा हो। दूर दूर तक कोई जमीन नहीं, कोई किनारा नहीं, सिर्फ लहरों की गूंज सुनाई दे रही हो और कानों में तेज हवा की सनसनाहट। उफान भरती इन लहरों के बीच कभी कोई जहाज अपनी राह बनाता है तो कभी किसी जहाज का हॉर्न सिर्फ दूर से सुनाई देता है। आसपास सिर्फ आपको बड़े वेसल्स दिखाई देते हैं। हजारों ऐसे जहाज हैं जो इस वक्त इस असीम समंदर में हैं और विश्वास मानिए, इन सब के पीछे अदृश्य रक्षक भी है, जो है भारतीय नौसेना। नमस्कार, ये है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र और मैं हूं इसकी सूत्रधार शैलजा। आज बात होगी ऑपरेशन संकल्प की और मिलाऊंगी कुछ इंडियन नेवी के होनहार हीरोज से जो हर समय तत्पर हैं। बेसिकली ऑपरेशन संकल्प is an initiative by Indian Navy which does not protect a specific area in terms of geographical boundaries, but it focuses on ensuring the safe passage of Indian flagged merchant vessels and maintaining maritime security in three key operational areas: the Gulf of Aden and the adjoining areas, the Arabian Sea and off the east coast of Somalia. ये हर उन समुद्री रास्तों को महफूज बनाता है जहां से अधिकतर मर्चेंट वेसल्स गुजरते हैं। लेकिन इन सब के पीछे है एक ही सवाल कि आखिर भारतीय नौसेना ये कर कैसे रही है। तो समय आ गया है आपको उन योद्धाओं से मिलाने का। उन्हीं से डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये मिशंस कैसे किए जा रहे हैं और उनसे बेहतर कौन बता पाएगा जिन्होंने खुद इस ऑपरेशन को कमांड किया हो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कोमोडोर कार्तिक श्रीमान सर से। कंग्रेचुलेशन सर, you have been awarded the Yudh Seva Medal in recognition of your service as a Fleet Operations Officer of Western Fleet from December 2023 to December 2024, which included the conduct of Operation Sankalp. Thank you. जी सर, ऑपरेशन संकल्प के बारे में बताएं कि किस तरीके से ये सक्सेसफुली इन 3 की एरियाज में किया जा रहा है। So it was an absolutely unprecedented operations conducted over a large expanse, 51 lakh square kilometers. And just to put that into perspective, that's about 1.5 times the land mass of India. It covered the Gulf of Aden, the Arabian Sea, parts of the South and Western Indian Ocean. So it was a huge area. We deployed about 21 plus ships with about 5,000 personnel. And we faced many challenges which were unprecedented in nature. Challenges? What kind of challenges did you face, sir? And to safeguard such a vast area, I'm sure you had to assess threats, prevent them in time, and prepare thoroughly to tackle any unforeseen situations that came your way. Just to name a few, the first was to determine patterns of piracy attacks, patterns of the tactics that the pirates were using, the hotspots for drone and missile attacks, monitoring the hash highway for narcotics, rendering medical assistance. The second was reconnaissance, and for which we used the naval aviation assets in support of our ships deployed. And I can tell you that finding a pirate boat in such a vast ocean is almost like finding a needle in a haystack. So it was quite challenging. Third is we were getting a lot of information from the IFC IOR, from merchant ship agencies, from other international agencies, from our ships who were deployed, from the fishermen, from the merchantmen. So all these inputs required analysis so as to get something actionable out of them. Also, there were concurrent operations going on. That means at some part of the area there was an anti-piracy mission. In another part there was anti-narcotics operation. Somewhere there was a firefighting assistance being rendered. Somewhere there was a different nature of operations going on. And all these had to be controlled near simultaneously, and the right inputs and the right directions required to be provided. And last but not the least was logistics sustainability. Deploying so many ships with so many personnel for days on end, managing their fueling cycles, rations, and other things that go along with it was a huge challenge as well. Right, sir. ये तो बात हो गई कि हम पहले से कैसे तैयार हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि ये इतना बड़ा एरिया है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर मल्टीपल मिशंस चल रहे होते होंगे। Tell us about that. How you being present somewhere at the sea was managing simultaneous missions which were going on different parts of this huge sea. That's right. When you're at sea, you're with the elements.
We had set up a specialized operations room to monitor all these inputs, which was well equipped. I could just say that it's almost from the movies. You have pirates attacking a ship, and there's a constant mind game going on because they're using arms, they're using ammunition. You are trying to compel them to surrender. On the other hand, you get a report that suddenly a narcotics laden boat might be there. You plan and send out an aircraft to go and search for that boat. And at the similar time, you get another tip off that, maybe there's another boat gone there. It's an absolute jigsaw puzzle which you're trying to get it right and position ships and aircraft so that they can go and conduct these operations successfully. And absolutely brilliance of our ships, their crew who stayed on station for such a long time and mentally won the game. Ji, I'm sure our listeners have understood the challenges as well as how the missions were carried out at sea. अब दोस्तों आइए बात करते हैं उन हीरो से जो इन मिशन से सीधे तौर पर जुड़े रहे। जैसे कि कोमोडोर कार्तिक श्रीमान सर ने हमें बताया कि भारतीय नौसेना को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वो मिशन भी उसी हिसाब से तय करते हैं। सी The mandate of the Indian Navy is very clear. Even under adverse conditions, it will continue to deploy warships to protect and further India's maritime interests, while also fulfilling its responsibilities and obligations as the first responder in the maritime domain and as a preferred security partner for not just our ships but to other countries too. तो इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब मेरे साथ हैं कैप्टन राजा बाबू शर्मा जी, जिन्हें हाल ही में नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। कंग्रेचुलेशन सर। हमें आईएनएस सुमित्रा के उस मिशन के बारे में बताएं। थैंक यू। मैं उस वक्त कमांडर के रैंक में आईएनएस सुमित्रा जहाज कमांड कर रहा था एंड वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी बी डिप्लॉयड इन गल्फ ऑफ एडन टू सपोर्ट ऑप संकल्प। 36 घंटों के उस ऑपरेशन के दौरान वी आइडेंटिफाइड 2 हॉस्टेजेस बोट्स एंड अबाउट 11 आर्म्ड पायरेट्स। राइट सर, और वो ईरान के फिशिंग वेसल्स थे। आपने अपनी टीम के साथ मिलकर उन्हें सफलतापूर्वक आइडेंटिफाई किया और इंटरसेप्ट किया। सर अब हमें बताएं कि समंदर में आखिर ये सब किया कैसे जाता है? डेफिनेटली ये काफी खतरनाक होता होगा, तो इन मिशंस को आप अंजाम कैसे देते हैं? 28 जनवरी 2024 की वो तारीख थी, क्या कुछ हो रहा था उस समय? 28 जनवरी को मुझे याद है कि उस दिन रूटीन बोर्डिंग के दौरान हमें जो खबर मिली एक ईरानियन बोट से कि करीब 20 माइल दूर बोटों को उनके अपने रेडियो सर्किट पे खबर मिली थी कि कोई 2 बोट हाईजैक्ड हैं जिसमें आर्म्ड सोमाली पायरेट्स हैं। और फिर करीब 18 बोटों में से हमें उन 2 बोट्स को आइडेंटिफाई करना था। वो एक मुश्किल काम था, किंतु हमारे सिचुएशनल अवेयरनेस, डिप्लॉयड हेलीकॉप्टर और रेडियो होमिंग के द्वारा हम उन 2 बोट्स को आइडेंटिफाई कर पाए। और जैसे ही हमें पता चला, वी होम्ड ऑन टू दोज 2 बोट्स एंड देयर आफ्टर undertook sea maneuvers, took precise firing to deter them, to coerce them to surrender. However, they did not surrender. We discussed within our team and अपने एक सीमैनशिप तरीके का एग्जाम्पल देते हुए और बहुत ही क्लोज मनूवर किया जिसके द्वारा हमने उसकी बोट के प्रोपेलर्स को फाउल किया एंड उन्हें मजबूर किया कि वो सरेंडर करें। एंड रेस्ट ऑल वाज हिस्ट्री। इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। Right, we can imagine how you must have carried out this entire mission successfully. Thank you so much for talking to us. Thank you. जय हिंद। दोस्तों अब बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प के एक और मिशन की, और इसे बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 1 GS वीर सिंह यादव जी। अपने मिशन के बारे में आपको हाल ही में यानी 27 जून 2025 को नौसेना मेडल से नवाजा गया। अब बात करते हैं उस खतरनाक मिशन की। तारीख थी 26 जनवरी 2024। गल्फ ऑफ एडन में एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर MV मार्लिन ड्यूएंटा पर हूती उग्रवादियों ने हमला कर दिया। हमला मामूली नहीं था, इसमें एंटी-शिप मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। इस हमले ने जहाज पर भीषण आग भड़का दी थी। समंदर के बीचों बीच जलता हुआ जहाज और उसमें फंसे लोग, हालात बेहद गंभीर थे। ऐसे वक्त में मदद के लिए सबसे पहले पहुंची भारतीय नौसेना। इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम ने जैसे ही डिस्ट्रेस कॉल सुनी, वो फौरन एक्शन में आ गया। आखिरकार MV मार्लिन ड्यूएंटा को जलकर राख होने से बचा लिया गया और सबसे बड़ी बात, उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। वीर सिंह यादव सर, जिस मर्चेंट वेसल पर आपने और आपकी टीम ने आग पर काबू पाया, वो जहाज कितना बड़ा था, उसमें क्या चुनौतियां थी और उस वक्त हालात कैसे थे,
आप जिस मर्चेंट वेसल को बचा रहे थे उसमें नाफ्ता था। एंड हियर आई वांट टू टेल माय लिस्टर्स कि नाफ्ता क्या होता है। नाफ्ता इज वेरी हाईली फ्लेमेबल ऑयल। इसके कंटेनर्स में आग लगना काफी खतरनाक होता है और इस पर काबू पाना भी बहुत जोखिम भरा टास्क होता है। जस्ट इमेजिन कि अथाह समंदर में एक विशालकाय आग का गोला बना होगा ये मर्चेंट वेसल, और ऐसे में अपनी जान की परवाह के बिना आप अपनी टीम के साथ मर्चेंट वेसल पे गए। तो सर फायर फाइटिंग के इस मिशन को अंजाम कैसे दिया गया? डिस्ट्रेस्ड वेसल एमी मॉली लोंडा की 27 चालक दल के सदस्य बहुत ही निराश और हताश थे। वे करीब 12 घंटे लगातार आग बुझाने का अथक प्रयास के बाद थक चुके थे। वे जहाज़ को डूबने के लिए छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जहाज़ पर 90,000 टन अति ज्वलनशील द्रव्य नेफ्ता था। मानो वह एक बहुत बड़ा पेट्रोल बम था जो कभी भी फट सकता था। हमारी टीम ने शीघ्र ही अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज से जहाज़ पर विद्यमान फायर फाइटिंग सिस्टम को जाना और जहाज़ पर तेल के टैंकों के बारे में जाना, और देखा कि आग की सतह का तापमान करीब 750 डिग्री सेंटीग्रेड था। आग एक से दूसरे टैंक पर फैलती जा रही थी। हमने फायर फाइटिंग फोम से आग पर 3 तरफ से आक्रमण किया। 1 घंटे के कठिन प्रयास के बाद जब देखा कि आग की लपटें कम नहीं हो रही थी, तब हमने अपने अनुभव से जाना कि फायर फाइटिंग फोम टैंक के अंदर जाने की बजाय बबल्स के रूप में बाहर निकल रहा था। इतनी मशक्कत के बाद फिर आग पर आपने काबू कैसे पाया? हमने देखा कि निष्क्रिय गैस के दबाव की वजह से फोम अंदर नहीं जा रहा है। हमने मास्टर से निष्क्रिय गैस का दबाव कम करने को कहा और लगातार बिना रुके आग बुझाने का प्रयास करते रहे। निष्क्रिय गैस सभी टैंकों में डाली जा रही थी, जिससे कि नेफ्ता को वेपराइज होने से बचाया जा सके और नेफ्ता और ऑक्सीजन का मिश्रण न हो पाए। हमारे पास भी फायर फाइटिंग में इस्तेमाल होने वाला AFFF फॉर्म बहुत ही सीमित मात्रा में था, और 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमने बिना किसी जनहानि के आग पर काबू पाया। इस तरह भारतीय नौसेना की एक्सपर्ट फायर फाइटिंग टीम ने 27 चालक दल के सदस्य, 90,000 टन नेफ्ता और एक ऑयल टैंकर को बचा लिया। जी सर, जमीन पर फायर फाइटिंग और एक मर्चेंट वेसल पर फायर फाइटिंग, इन दोनों में बहुत अंतर होता होगा। आपके पास वहां पर कितनी रिसोर्सेज होती हैं ऐसी किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? साथ ही आप इसे थोड़ा सा हमें और एक्सप्लेन करें ताकि हमारे लिसनर्स इस चीज को समझ सकें कि किसी मर्चेंट वेसल पे फायर फाइटिंग कितना टफ टास्क है और ये जमीन पर फायर फाइटिंग से कितना डिफरेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, जहाज़ पर चलने के लिए कई सौ टन डीजल होता है, विशाल मात्रा में गोला बारूद होती है और कई सौ किलोमीटर लंबी बिजली की तारें होती हैं। जहाज़ के अंदर जहरीली धुआं आग बुझाने में सबसे बड़ी बाधा बनती है। समुद्र पर बड़े जहाज़ पर आग बुझाना ज़मीन पर आग बुझाने से एकदम विपरीत होती है। ज़मीन पर आग बुझाने के लिए दमकल की मदद कुछ ही समय में पहुंच जाती है, परंतु समुद्र में जहाज़ पर सहायता पहुंचने में कई दिन भी लग जाते हैं अगर आपके आसपास के क्षेत्र में और कोई जहाज़ उपलब्ध नहीं है तो। जहाज़ के सदस्यों को खुद ही आग बुझानी पड़ती है। जहाज़ पर आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला AFFF फोम और निष्क्रिय CO2 गैस सीमित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, जो कि ज़मीन पर आसानी से उपलब्ध रहते हैं। राइट सर, आपसे बात करके हमें बहुत कुछ जानने को मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि समुद्री डाकुओं यानी पायरेट्स ने किसी मर्चेंट वेसल पर हमला कर दिया और फिर भारतीय नौसेना ने उन पर काबू कर लिया। सुनने में ये किसी थ्रिलर मूवी जैसा लगता है, लेकिन आज हम बिहाइंड द सीन्स जानते हैं। आखिर जब समुद्री डाकुओं के हमले की खबर मिलती है तो उस डिस्ट्रेस कॉल से लेकर पूरी ऑपरेशन को अंजाम देने तक क्या क्या होता है, कैसे इंडियन नेवी अपने ऑपरेशन संकल्प के 3 बड़े ऑपरेशनल एरियाज जो कि गल्फ ऑफ एडन और उसके आसपास का इलाका है, अरब सागर है और सोमालिया के पूर्वी तट के पास का इलाका है, इन इलाकों में समुद्री डाकुओं पर इंडियन नेवी कैसे हावी है, आज हम ये समझते हैं। हमारे साथ हैं नौसेना मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट कमांडर हर्षल भट्ट। सर, आप ऐसे ही एक खतरनाक एंटी पायरेसी मिशन का हिस्सा थे
Please take us back to 14th of December 2023 and tell us how that mission took place. So basically on 14th of December 2023, merchant naval vessel MV Ruin was hijacked by pirates and they were heading towards Somalia. We came to know about it and we were deployed on board INS Kolkata immediately chasing it. We caught the ship on 15th of March 2024. It was approximately 50 nautical miles on east of Somalia. When we communicated with the ship, their master told us that the ship is hijacked with 17 crew on board held as hostages and more than 30 pirates. We communicated with the pirates on the same radio communication and we warned them to surrender. But they resisted and said that since there is no Indian present on board, so if we carry out any boarding operation, they will start killing the hostages. So we had to change our plans and we started shadowing the vessel. After chasing the vessel, our Prahar team made a plan which was swift and we boarded the vessel from the blind zone of the merchant vessel. Right, sir. You just mentioned about Prahar team. I know if the Prahar team of Marine Commandos is there, success of the mission is guaranteed. Please tell our listeners about this special team, sir. Yes, ma'am. So basically, Prahar is, ma'am, actually known as the team of Marcos. We are 8 Marcos in that team who are leading an operation. In that, we have different kind of Marcos who are specialized in multiple things. Like someone is a sniper, one of them is a EOD qualified, and different specializations. And we are able to carry out any operation because since everyone is specialized in their own way, so we are able to undertake any daring ops immediately. Right. So what happened next? How does the reinforcement happen, sir? So basically, after boarding the vessel, we immediately secured the perimeter and all the key points which were there like bridge, engine room. Immediately after securing, we broke their chain of command and control as we knew about their modus of operandi. So the pirates had no other option but to surrender in front of us. Immediately after the surrender, we had our reinforcement team that jumped from C-17 and they joined us. We took back the hostages into our naval war vessel and all the pirates were checked and then shifted on board the naval war vessel. The pirates were then brought back to Mumbai and handed over to the Mumbai police. वाह, और ऐसे किए जाते हैं वो मिशंस जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए सर। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इंडियन नेवी का ये ऑपरेशन असल में एक संकल्प है। ये भरोसे की वो लहर है जिसमें भारतीय नौसेना हर वक्त मुस्तैद, हर हालात में तैनात और हर चुनौती के लिए तैयार रहती है। ये किस्से सिर्फ बहादुरी के नहीं हैं, ये सबूत हैं कि जब गल्फ ऑफ एडन की लहरों पर पायरेट्स मंडराते हैं, जब अरब सागर में कोई खतरा सर उठाता है, जब सोमालिया के तट पर किसी जहाज की तरफ से मदद की पुकार आती है, तो भारतीय नौसेना सबसे पहले वहां पहुंचती है। आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे एक कमांडर अपने जहाज से दूर बैठकर कई ऑपरेशंस एक साथ संभालता है, कैसे कप्तान अपनी टीम के साथ समुद्री डाकुओं को घेर लेता है, कैसे आग के गोले बने मर्चेंट वेसल को बचाने के लिए एक सेलर अपनी टीम के साथ अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराता। कहने को तो ये किस्से लगते हैं, पर आज मैंने उन नेवल पर्सनल से आपको मिलाया जो असल में इन किस्सों, इन कहानियों के हीरोज हैं। मैं ऐसी ही और कहानियां आप तक लाती रहूंगी। मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।